learners, once again welcome back to my channel that is NTA UGC NET Paper 2 Education. अगर आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं आपके लिए लेके आऊँ. आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 का ए डिवीजन और उसमें है टॉपिक नंबर 6 विच डील्स विथ पर्सनालिटी. And not only that, but which are certain definitions that are very famous regarding personality that also we are going to study. So without further ado, let's just start with today's session. As you all can see on the screen, we are going to study chapter number 3 A division, and in that topic first, second, third, fourth, fifth, up till now 5 topics we have already covered. If you want all these videos to be understood by you, then link in the description is provided. Do check out and do go through all those videos so that it will help you in your examinations preparation. Today we are going to study the 6th point. As you can see over here, it is going to make you understand about definitions regarding personality and followed by theories and the 8th topic, the last one, mental health and hygiene. But today we are going to study this topic, that is definitions of personality. You can all see on the screen. Topic number 6 deals with the personality topic. Now what is personality? Personality refers to the relatively enduring characteristics that differentiate one person from another and that lead people to act in a consistent and predictable manner, both in different situations and over extended periods of time. कितना सिंपल तरीके से यहाँ पे समझा है कि पर्सनालिटी किसे कहते हैं. एवरीडे हम बोलते हैं कि इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसकी वैसी है, लेकिन जब डिस्क्राइब करने को आए तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे. तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझ देता है दैट इट इज़ helping us to understand how a person is and how he reacts at different points of time, at different periods of time, and how we can say so based upon the characteristics, उसका nature, उसका characteristics, वो हमने थोड़ा बहुत पता चल गया होता है, and thereby we can say that this person is having this sort of personality. तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिफ्रेंशिएट अगर आपको करना है तो बेस्ड अपॉन पर्सनालिटी, हिज फीचर्स, हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, हिज बिहेवियर, हिज ट्रेड्स, वी कैन एक्चुअली डिटरमाइन हाउ अ पर्सन कैन बी और शुड बी, एंड वो हम प्रेडिक्ट करते हैं उसी के बेसिस पे ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि लंबे टाइम के लिए भी हम प्रेडिक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, ये कैसे आंसर देगा, एंड दैट ऑल. Personality is defined as enduring or lasting patterns of behavior and thoughts across time and situation. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कौन से टाइम पे कौन किस तरीके से बिहेव करेगा, सिचुएशन के हिसाब से उसका बिहेवियर कैसा होगा. एक एग्जांपल लेते हैं. कोई अग्रेसिव पर्सन है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी. वो ऐसा भी हो सकता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्टअप है, उसका फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट है, आर्मी जैसी उसका फिजिक है, अग्रेसिव इन अ वे कि पंक्चुअलिटी में मानता है, रेगुलरिटी में मानता है. पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर अलग अलग इंसान के उस तरीके से होते हैं और वही बिहेवियर किस तरीके का होगा पर्टिकुलर टाइम और सिचुएशन में वो हम समझ में लाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट इज पर्सनालिटी. हियर आगे देखते हैं. पर्सनालिटी रिफर्स टू द रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट. दिस इज वन एंड द सेम. नाउ डेफिनेशंस में देखते हैं. ऑलपोर्ट ने डेफिनेशन जो दी है वो. अब ये ऑलपोर्ट हो गए, कैटल हो गए, जो मैंने यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन लिखी है आरबी कैटल, ये सब साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने पर्सनालिटी के ऊपर अलग अलग थियरीज भी दी है, अपना ओपिनियन भी दिया है, which is really very important if you are studying psychology, if you are student of psychology, if you are student of teacher education field के, तो आपको डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता ही है. Personality is a dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to environment. His मतलब कौन, तो पर्सन की जो यूनिक एडजस्टमेंट है एनवायरनमेंट के हिसाब से वो हमें समझ में ला देती है. दैट इज यू कैन से एक
डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। टाइम टू टाइम आपको एक जैसा ही वो पर्सन नहीं दिखेगा, उसका फीचर्स, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके ऑब्जर्वेशन उसको ओवरऑल होलिस्टिक पर्सनालिटी बनाते हैं और वो उभर के आती है और वही हम देख पाते हैं। तो वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल का जो साइकोफिजिकल सिस्टम से चलता है। साइको यानी कि माइंड रिलेटेड, माइंड से, कॉग्निशन से चलने वाला, फिजिकल दैट इज लिंक विथ हिज फिजिकल मूवमेंट्स। तो यहाँ पे माइंड और बॉडी का जब आप इंटीग्रेशन या एसोसिएशन कहते हो तो उस तरीके से वो पर्टिकुलर सिचुएशन में एडजस्ट होके वो बिहेव करेगा और आप उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हो वो बिहेवियर को, इंसान को। According to R.B. Kettle, personality is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कैटल ने कहा है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन कैसे बिहेव करेगा वो आप जब डिटरमाइन कर सकते हो, दैट इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। हियर यू कैन सी पर्सनैलिटी इज नॉट स्टेटिक। स्टेटिक मतलब कि स्टेडी नहीं है, इट इज डायनेमिक, वो फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल है, एडजस्टेबल है एंड एवर इन द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड मॉडिफिकेशन, जब भी ज़रूरत पड़े उस हिसाब से। Every personality of a person is a product of heredity and environment. ये most important है। पर्सनैलिटी कैसे इंसान की चेंज होगी आप कह सकते हो या कैसे बनती है, तो हेरिडिटी, उसका जो इन्नेट या जो हेरिडिटी कह सकते हो पहले से जेनेटिक है, जीन्स के हिसाब से, उस हिसाब से भी उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और एनवायरनमेंट से वो क्या सीखा है, लोगों को इंटरेक्शन के से वो क्या सीखा है, पढ़ाई लिखाई करके वो क्या सीखा है, खुद के एक्सपीरियंसेस से, ऑब्जर्वेशन से, सोसाइटी में सोशलाइजेशन से, कम्युनिकेशन से क्या सीखा है, वो सब एनवायरनमेंट में आता है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से भी इंसान की पर्सनैलिटी वो उभर के आती है या बनती है। लर्निंग एंड एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब कि अक्वायरिंग, जो आप अपने अंदर इनकलकेट करते हो। तो लर्निंग एंड एक्वायरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कैसे, तो आप छोटे थे तब आपको पता था कि नहीं आपको एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना होता है एल्डर्स के साथ, आप छोटे होते तो आपको तो कुछ नहीं आता, फिर धीरे धीरे विद द टाइम एंड सिचुएशन एंड योर ओन ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंसेस आप बड़े होते हो, वैसे वैसे समझदार होते हो, धीमे धीमे मैच्योरिटी आती है और उस तरीके से धीरे धीरे आपका एक पूरा पर्सनालिटी बिल्टअप होता है खुद के एक्सपीरियंस से। तो वो एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, पर्सनैलिटी इज समथिंग यूनिक एंड स्पेसिफिक। हर इंसान की यूनिक और स्पेसिफिक पर्सनैलिटी होती है। अब ये पर्टिकुलर यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पर्सनैलिटी की बहुत सारी थियरीज है जो कि एग्जाम में सारी में से क्वेश्चंस कुछ ना कुछ या कोई ना कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो इम्पोर्टेंट तो है। पर्सनालिटी में ट्रेट थियरी हो जाती है। ट्रेट मतलब कि फीचर्स दिखाते हैं। तो ट्रेट थियरी में ट्रेट थियरी ऑफ पर्सनालिटी आप पढ़ेंगे जो कि हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंड करने में कि इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके के होते हैं। जैसे कि आप देख लो, जैसे हम नहीं कहते रजस तमस, रजस हो गया, तमस हो गया, तो मतलब कि ये एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो ट्रेट है कि अग्रेसिव इंसान हो गया या फिर शांत हो गया, किसी को रीडिंग अच्छा लगता है वैसा। तो दैट इज हाउ ट्रेट थियरी, डिटेल में हम वन बाय वन पढ़ेंगे आगे। साइको एनालिटिक थियरी किसे फोकस करती है, तो साइको एनालिटिक थियरी आप कह सकते हो कि आपका जो बिहेवियर है, ईगो हो गया, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड हो गया, फिर आप कह सकते हो कि जो इंटरनल है जो कि माइंड से एसोसिएटेड है, ईगो, एटीट्यूड हो गया इंसान का, या फिर आप अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड का आप बोल रहे हो कुछ प्रेडिक्शन करके, तो दैट इज ऑल अबाउट साइको एनालिटिक। उसी का एनालिसिस आप करते हो, देन इट कम्स ओवर हियर। फिर तीसरा होता है सोशल कॉग्निटिव। सोशल मतलब सोसाइटी रिलेटेड, दैट इज आप इंटरेक्शन करते हो लोगों के साथ, तो आपको पता चल जाएगा, आपको डेवलपमेंट हो जाएगी, माइंड का डेवलपमेंट होता है। कम्युनिकेशन किसी के साथ हम करते हैं ना, तो उसके आइडियाज़ भी हमें पता चलते हैं, अपने खुद के भी आइडियाज़ हम बाहर किसी के सामने रखते हैं, खुद से भी एक्सपीरियंस करते हैं, उनके विचार क्या है वो समझते हैं, कैसे बिहेव करना चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन वो समझ आती है। तो दैट इज़ दिस वन। ह्यूमनिस्टिक थियरी दैट इज डीलिंग विद स्टडी ऑफ ह्यूमंस। एंड देन बिहेवियरल, बिहेवियरल में कौन सी आती है कि B.F. स्किनर की हो गई, ओपरान कंडीशनिंग हो गया, फिर इवान पावलो की हो गई,
क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, कैसे बिहेवियर में इंसान के चेंज आता है कंडीशनिंग करके। कंडीशनिंग मतलब कि ट्रेनिंग दे के। तो ये सब एक पर्सनालिटी डेवलप करने की थियरी है जो कि आगे हमें पढ़नी है। देखो, मैंने जो समझा है वही मैंने यहाँ आपके समझ के लिए लिखा है। ट्रेट थियरी, इट हेल्प्स अस टू लर्न व्हाट ट्रेट्स मेक्स द पर्सनालिटी, हाउ दे रिलेट टू एक्चुअल बिहेवियर। एक्चुअल बिहेवियर कैसे बाहर आएगा, तो उसके ट्रेट के हिसाब से। साइको डायनेमिक या साइको एनालिटिक थियरी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो अंदर इंसान के अंदर रही हुई उसकी जो आप कह सकते हो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसके अंदर के थॉट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसके स्ट्रगल करके उभर के वो कैसे आता है, दैट्स ऑल अबाउट द साइकोडायनेमिक। ह्यूमनिस्टिक, दैट इज सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो गया, पर्सनल ग्रोथ, फोकसेस अपॉन द प्राइवेट एज वेल। प्राइवेट इन द सेंस कि इंडिविजुअल कैसे डेवलप होता है बेस्ड अपॉन द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस। सोशल कॉग्निटिव मतलब कि सोशलाइजेशन, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करके मेंटल प्रोसेस डेवलप होता है। बिहेवियरल, दैट इज रिलेटेड टू बिहेवियर चेंजेस, कंडीशनिंग करके। ट्रेड थियरी में आप देख लो, ट्रेड थियरी किन्होंने दी है, तो ट्रेड थियरी ऑलपोर्ट हो गया, कैटल हो गया, आइसिंक हो गया, 5 फैक्टर मॉडल थियरी हो गया। तो इसमें से थोड़ी बहुत तो हमें पढ़नी भी है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो एक एग्जांपल मैंने लिखा है, सम इंडिविजुअल्स आर एंशियस वेयर सम आर काम। एक कोई कोई तो अग्रेसिव बहुत हो जाते हैं, कोई छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। तो ये सारे इंसान के ट्रेट है जो कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। So, with this is a wrap for today's session. Thank you so much. Do like and subscribe the channel if you have understood from the video. My channel name is NT-UGC-NET Paper to Education. Hope you are liking the video, and if you have any sort of doubt, do write in the comments so that I could come to know that what are certain modifications that are needed to make for yourself in order to help you for your examinations preparation. Till the next time, keep learning, keep achieving.